We bridge your knowledge to success. Hello friends, welcome to another episode of Aditya Talks, and today we have Mr. Pradeep Tripathi on our show. Welcome to the show, sir. How are you doing? Thank you, Ajit. I'm doing good. Yes, sir. So, and how are you? I am fine. It's an honor to take your interview, and today I think we are going to have a very good discussion for our viewers, it will be it will be a very great discussion. So, sir, first of all, for the benefit of our viewers, can you share some of your background? Can you tell us about yourself? My name is Pradeep Tripathi, and I'm one of the founder of Green Yatra. So that is a non-profit organization. I come from the if you talk about my roots, so I come from a very small village of Madhya Pradesh. So in the Bundelkhand area, Satna district. And currently I'm in the Mumbai, and it has been more than 20 years being in the Mumbai. And I'm working and following my passion, running the Green Yatra, working as a consultant for the environment. So that is my passion, what I'm following. Yes. This is really interesting. So basically, sir is a green entrepreneur and has founded the startup Green Yatra, which is a very good endeavor. He will explain this startup in a minute, but over to you, sir. Can you tell us about your journey as a green entrepreneur and how you founded Green Yatra? What inspired you to start this environmental startup and NGO with the nature-centric approach that you have? Can you tell us about your company? Yeah, so I would like to share. Green Yatra is a non-profit organization. It's an NGO, and behind starting that, I never thought I will even start this kind of venture and any NGO when I was even in the college and school days. But I'm in general nature lover. I have been grown up a very small village surrounded by the hills. So somewhere nature is, if you come from the rural background, so definitely nature is always there in you. When I shifted to the city like Mumbai, I have been in Indore, I have been in Delhi, and then I realized greenery is missing from everywhere. And I'm the person who don't like to blame the things. I'm the person, rather than, being the part of problem, let's be the part of solution. And when I came to the Mumbai and, after college, I was studying here, and then I realized okay, there is a very few greenery all around everywhere. Pollution is increasing. So I thought, rather than talking about कि okay कितना problem है, government ये नहीं कर रही, let's do whatever we can do. So me and Mr. Durgesh Gupta, he's one of my friend. He's Bombay High Court and Supreme Court lawyer. So we started together Green Yatra. We started with the Go Green Ganesha. That was during Ganpati, lots of POP Ganesha idol, and so make it more environment friendly. Then we shifted, ये seasonal hota tha, so we shifted to the Go Green Kits. That is one of my favorite initiative. Now it is known as the Green Campus under the our initiative, where we work with the different schools, students, college students, especially youth centric, because they are the future. Yes. और अभी भी पीपल थिंक कि लोगों को लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनको कोई कंसिडरेशन में हमारी सोसाइटी में अभी तक इन जनरल नहीं लेता, तो बच्चे क्या करेंगे. एंड दैट दे आर द बिग थिंग. इफ यू वांट टू सी दैट, इफ यू वांट टू स्प्रेड any awareness, they are the best source when there is something interesting, because they go in the home and discuss. So our approach was, kids will teach their parents how to go green in day-to-day life, adopt the greenness. So that is how we started. So if you say that how we got inspired. So if I say in one single line, be the part of solution. आपको लगता है जितना भी ये कर सकते हैं, and if you can't do that, criticize करने का और सोशल मीडिया पे डालने का कोई मतलब नहीं निकलता है, because that is not going to solve your issue, and it will put you more negativity in your mind. तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो भी कर सकते हो. So that is how Green Yatra started, and we did it. Yes, this is really interesting. So I think your approach is very good, क्योंकि आपने गवर्नमेंट
गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं किया, आपने किसी और पे रिलाई नहीं किया, आपने अपनी तरफ से चेंज चालू किया एंड आपने बहुत सारे Yeah. अलग अलग लोगों को भी इंस्पायर किया चेंज करने को। एंड इन छोटे छोटे स्टेप से ही नेचर में एक्चुअल इफेक्ट आता है और लार्ज स्केल पे करने से आपने बहुत अच्छा काम किया सर। आपका वैसे मैंने देखा बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी और बहुत जगह आपका एक गोल है, द गोल ऑफ प्लांटिंग 10 करोड़ ट्रीज बाय 2030 एंड ये आपका गोल बहुत अच्छा तो है, मगर आपने इस विजन से आपने इस विजन को कैसे लाया और आपने ये आपका प्लान क्या है कि आप इसे अचीव कैसे करेंगे? बेसिकली सी, यदि हम बात करें सो मेरा फोकस ज्यादातर होता है अर्बन स्पेस पे। प्लांटेशन इज द थिंग्स, यदि आपको एनवायरनमेंट से जो भी प्रॉब्लम हुई है, काफी सारी चीजें होती, कार्बन इमिशन हो गया है, प्लांट लिमिटेड है, वो भी कट डाउन हो रहे हैं। एंड व्हेन इट कम फॉर द अर्बन स्पेस, इवन अक्रॉस द इंडिया हमारा फॉरेस्ट कवर भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। एंड व्हेन यू गो इन द अर्बन स्पेस स्पेशली, इवन इन द लास्ट 1 decade, India has the most polluted cities, across the globe. इस साल यदि हम बात करें तो टॉप 50 में 39 cities, the most polluted cities are Indian cities. So लगभग हमारा 60-70% contribution होता है। If you go on the mega cities like Mumbai, Delhi, हम भी दुनिया में मतलब हम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। And they are the cities where when you come in the, आप सुबह उठते हो तो आप 5 या 6 सिगरेट का धुआं पीते हो। I won't like to see when the young, younger generation like you, आपके उसमें कोई गलती नहीं। You are, and what we are gifting you, कि आप जब सुबह उठते हो तो 5 से 10 सिगरेट का धुआं घुला हुआ। We have all luxury in the life. हमारे पास एयर कंडीशंस हैं, 24x इलेक्ट्रिसिटी है, फिल्टर वाटर है, बट वी डोंट हैव अ बेसिक ब्रीदिंग, मतलब फ्रेश एयर नहीं है हमारे पास। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज हमें शुरू करनी चाहिए। आई नो दैट 10 करोड़ ट्रीज इज नॉट अ बिग नंबर, बट स्टिल कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि ये इट कीप मी मोटिवेटेड। जब मैं सुबह उठता हूँ एंड आई एम पैशनेट अबाउट द ट्रीज, डेफिनेटली माय ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग अदर इनिशिएटिव, बट आई एम लाइक a dendrophile. I love the trees. I'm in the love with the trees. So that's why I keep कि at least कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा गोल होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करता रहे कि नहीं, you have to beyond the money and all, everyone we are working for the money and survival, but कुछ ऐसा होना चाहिए कि this is something make keep me motivated. So that is how we thought कि at least हम इतने पेड़ तो लगाने चाहिए, and we are heading toward it, and very soon हम बड़े स्केल पे मैसिव प्लांटेशंस प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। So that is how the plan is going on. सर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हर इंसान की जिंदगी में एक पैशन होना चाहिए और वो पैशन की तरफ शिद्दत से आप काम करते हो तो आपको अलग टाइप ऑफ रिवॉर्डिंग फीलिंग होती है। एंड आपका पैशन नेचर की तरफ है तो दैट इज ऑल द मोर इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड फॉर यू एज वेल, क्योंकि आप नेचर के साथ जितना टाइम बताएंगे उतना ज्यादा अच्छा है और आपको क्या कहते हैं, आपको उससे खुशी मिलती है। हर इंसान के पास एक चीज होती है ऐसी चीज। एंड आपका गोल भी बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी कर चुका है, आपका पैशन और आपका ड्राइव। सर आप ये बताइए कि आपने पेड़ों का तो आप काम करते हैं और आपके पेड़ों में आप स्पेसिफिकली मैंग्रोव प्लांटेशन और के कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के काम आप करते हैं, तो आपको चैलेंजेस जो आप फेस करते हैं इन सारे पेड़ों को रिस्टोर करने में, और आपने इतने सारे एरियाज में काम किया है, तो इम्पैक्ट आपका क्या हुआ? See, if we talk about, so we do the wind plantation. So there is a different kinds of plantation we work. तो लोगों को ये लगता है कि सिर्फ गड्ढा आपने खोदा, उसमें पेड़ लगाया and job is done. So that is the whole 5 to 10% of the whole plantation process. जब भी आप कोई plantation करते हैं तो एटलीस्ट उसे 3 साल तक केयर करना। वो प्लांट कहाँ का है? Is it the native, local native? दिल्ली का पेड़ मुंबई में नहीं, मुंबई का पेड़ दिल्ली में नहीं लगना चाहिए, कोस्टल का नॉन कोस्टल कोस्टल में नहीं लगना चाहिए। सो वी आर प्लांटिंग, वी आर डूइंग ऑल टाइप ऑफ प्लांटेशन। हम लोग मास ट्री प्लांटेशन करते हैं, फ्रूट्स प्लांटेशन करते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांटेशन करते हैं जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए है। हम लोग मियावाकी प्लांटेशन के अर्बन स्पेस में वी आर द लार्जेस्ट NGO, वी आर डूइंग दैट। एंड देन मैनग्रोव। सो पहले हम लोग मैनग्रोव में नहीं थे, बट they are like a very interesting,
आपको पता होना चाहिए पूरी दुनिया का, इंडिया है जो 4th लार्जेस्ट कंट्री व्हिच इज लॉट्स ऑफ मैंग्रोव एरिया, वो हमारे शहरों के प्रोटेक्शन वॉल हैं। दे हाँ आर जी। प्रोटेक्टिंग अवर सिटीज एंड इवन नॉट द सिटी, जहां जहां पर वो हैं एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उसमें जो कार्बन एब्जॉर्प्शन जो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, जो पूरी दुनिया आजकल देख रही है कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, तो कौन सी चीज हम करें जिसे ब्लू कार्बन बोलते हैं। इसलिए अभी तक ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आया था जो ग्रीन यात्रा के नाम से एसोसिएटेड हो, लाइक वी आर अ ग्रीन यात्रा, बट नाउ वी हैव अ प्रोजेक्ट कॉल्ड ब्लू यात्रा, मीन्स दैट इज अ मैसिव प्रोजेक्ट वी आर डूइंग, जिसमें अभी तक हमने टारगेट रखा है कि ऑलमोस्ट 25,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड बाय 2030 हम लोग, जिसमें ऑलमोस्ट 60 से 70 हजार एकड़ लैंड है जिसपे हम लोग ये प्लांटेशन कर रहे हैं। वो अलग टाइप के प्लांट्स हैं जो जिसमें लगभग थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज सर्वाइव करती हैं, एंड लोगों की इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बट हाँ नाउ दे आर जी। वेरी प्रोटेक्टेड एंड बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है। सो नाउ वी आर started as a big project. Generally ये प्लांटेशन में मैंग्रोव इज नॉट दैट इजी, बिकॉज उसमें गड्ढे खोदना और पेड़ लगाने जैसा और फोटो खिंचवाने जैसा नहीं होता है, हाँ बिकॉज यू हैव टू गो इन द मार्सी लैंड और एकदम कीचड़ में जाना, और आजकल का जो शहरों के आसपास का कीचड़ है वो सेफ नहीं होता है। आपको हाँ जी। वहां सिरिंज मिलेंगी, वहां पे कांच मिलेगा, प्लास्टिक मिलेगा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो काफी दिक्कत होती है, बट if you go in the other space जहाँ urban space नहीं है, so it is little bit easy, but that is how, so we are doing lots of Yes, sir. mangrove. So सर एज अ पर्सन, आप आपका प्रोजेक्ट से हटके आप इतने लार्ज स्केल पे मेनी प्लांट्स यू आर प्लांटिंग एंड यू हैव अ गोल ऑफ 2 करोड़ ट्रीज, एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एज यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 13 lakh trees by now. So how do you manage all this as a person, because this is extremely hard for planting trees in an area where there is plastic, there is pollution, and there is very much debris. How do you solve these problems on a daily basis, and can you tell us about how you manage your time, because it is a very interesting learning we can take from you. basically when you love something, I never do job. मेरा कोई मतलब होता नहीं कि ड्यूटी होती है, जॉब होता है 9 to 5 और समथिंग लाइक फॉर पीपल कि सुबह उठना, ऑफिस जाना है। आई एम 24/7 इन द वर्क बिकॉज आई लव इट। आज भी मुझे वही एनर्जी फील होती है जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था लगभग 15 साल पहले। सो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई एम जस्ट वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस होल इनिशिएटिव। माई स्ट्रेंथ इज माई टीम। So we have a team, dedicated people, और ग्रीन यात्रा में जो भी टीम मेंबर हैं उनका हमने कोशिश की कि people we hire is and they become the part of organization. They are passionate, dedicated about the environment. So जब वो dedicated team आपको मिलती है ना, so whatever work we are doing, we work। अभी जैसे बारिश का सीजन मुंबई में चल रहा है, फ्लड है, जहां रेड अलर्ट होता है, everyone seeking safe space की घर पे रुके, and our all team, ground team is on the ग्राउंड की कहीं वाटर लॉगिंग तो नहीं हो रहा, हमारे पेड़ को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, जो टेरेस्ट्रियल शहरों के अंदर प्लांटेशन किए हुए हैं हमने। इवन आई एम ऑलवेज ऑन द फील्ड कि कहाँ पे है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। सो व्हेन यू लव एनीथिंग तो आपके लिए टाइम मैनेज हो जाता है। जैसे होता है ना कि लॉट्स ऑफ पीपल गो ऑन द ट्रेवलिंग इवन डूइंग द जॉब, सी इवन यू आर गेटिंग टाइम फॉर कितने सारे बच्चे हैं जो खेलने कूदने में बिजी होते हैं, पढ़ने के लिए होमवर्क कितना सारा, आजकल तो बहुत टायरिंग हो गया है स्कूल से, इतने सारे होमवर्क हो गए, क्लासेस हो गए, बट व्हाट यू लव, सो यू ऑलवेज गेट द टाइम। एंड आई एम अर्ली राइजर, मैं अभी भी सुबह ऑलमोस्ट 4:30-5 बजे उठता हूँ। सो माई डे स्टार्ट बाय एंड देन एंड अप बाय अराउंड 10 o'clock. So we have a lots of time to do that. We have a team. So when you love anything, आप टाइम मैनेज हो जाता है। यदि आप क्या कहते हैं कोई चीज पसंद नहीं है तो आप कितना भी टाइम निकालो। आई रियली लव द वन कोट फ्रॉम द एलन मस्क कि यदि आपको कोई काम 30 दिन में करने के लिए दिया गया है, या तो आप उसे 30 दिन में करते हैं या 90 डेज में करते हैं। यदि वही काम आपको 3 घंटे में करने के लिए दिया गया है तो आप 3 घंटे में कर सकते हैं। That's all about mindset कि आपको जब एक ये होता है कि इतने टाइम में ये काम करना ही है, you do that। and another thing, when you love anything, so time manage हो जाता है। हाँ जी, मेरे को ये एक्चुअली कैसे पता चला
कि सर से जब इंटरव्यू के लिए हमने परस्यू किया था तो सर बहुत मीटिंग करते हैं, एकदम बिजी रहते हैं, एंड आई थिंक ही इज वेरी डेडिकेटेड टू हिज गोल एंड वो बहुत मेहनत करते हैं, एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हिज वर्च्यू। एंड मूविंग ऑन सर, जैसे अपन ने पहले मैंने आपको कहा था कि आपने 13 लाख सैपलिंग्स ऑलरेडी आपने प्लांट कर रखे हैं, तो आप ये बताइए कि आपके जो आप मैंग्रोव्स बनाते हैं, आप जो पेड़ रिस्टोर करते हैं, अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट लाते हैं और पोल्यूशन हटाते हैं, तो इनसे इम्पैक्ट क्या हुआ है ओवरऑल अभी कुछ समय में आप जब से कर रहे हैं काम, आपने क्या ऑब्जर्व किया है और ये हेल्दियर एनवायरनमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? यदि आप कोई भी पेड़ लगाते हैं, पॉजिटिव चेंज करते हैं, तो वो ऑन ग्राउंड करने के साथ लोगों के माइंडसेट पे चेंज, जैसे भी आप बात करें तो वी आर एक्सपर्ट, यदि हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांटेशन में शहरों के अंदर, तो वी डू द लॉट्स ऑफ डंपिंग यार्ड्स, जहां पे कोई जमीन लोग मना कर देते हैं, यहाँ प्लांट उग ही नहीं सकते हैं, सो वी आर एक्सपर्ट इन द डंपिंग यार्ड। सो हम पूरे डंपिंग यार्ड्स, डेब्री यार्ड्स को जब कन्वर्ट करते हैं एंड वी कैन सी दैट। आपको मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा, हमारा एक नवी मुंबई में डंपिंग यार्ड है, जो कभी डंपिंग यार्ड होता था उसमें 5, 10, 15 फीट तक आप कुछ भी खोदेंगे, यू विल गेट द डेब्री, प्लास्टिक, जो भी नॉर्मल एक डंप यार्ड में होता है। एंड देयर वी हैव प्लांटेड 1 लाख सैपलिंग्स। वहां पे आपको पहले से वहां स्नेक स्पीसीज थी, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज थी, यू कांट बिलीव। वहां हमने गोल्डन जैकॉल, जो कोस्टल एरिया में जनरली मिलता है मैन ग्रोव में, दे स्टार्ट गेटिंग कमिंग इन अब फॉरेस्ट। और फिर हमने उनको कई बार देखा था हमने, बट सी मेड द देन उसने अपना नेस्ट बनाया, नेस्टिंग करी वहां पे। अभी हमने पूरे कैमरा ट्रैप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाया था, सो वी गॉट लॉट्स ऑफ फुटेज, दे आर रेगुलर कमिंग देयर, जो पब्लिक है जहां देख रहे थे कि गंदगी पड़ी हुई है, एंड नाउ यू कैन सी द फ्लोरिश फॉरेस्ट है वहां पे। सो वो इम्पैक्ट हो गया बायोडाइवर्सिटी। इफ यू विल सी, सो यू विल सी द एन नंबर्स ऑफ बर्ड्स। आई विल लाइक टू शेयर, वी प्लांट ओनली लोकल नेटिव स्पीसीज। मीन्स ये होता है कि जो यहाँ की लोकल हैं, विदेशी नहीं है। और बर्ड्स में ये दे आर वेरी रिजिड अबाउट देयर पैटर्न। जैसे हम इंसान एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जैसे आप गुलमोहर, रेन ट्री, अकेशिया या इन पेड़ों को देखेंगे, इन पे पक्षी घोंसला तक नहीं बनाते हैं। सो वी गो फॉर द लोकल नेटिव स्पीसीज। सो वी हैव सीन टेम्परेचर कम हुआ है उस एरिया का, जहां पे आप जाइए तो हमारे अर्बन फॉरेस्ट के आसपास का आपका टेम्परेचर कम दिखेगा, फ्रेश एयर, लॉट्स ऑफ बर्ड्स, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, वाइल्ड लाइफ, जितनी स्क्वेरिट्स, और लोग फील दैट। और जहां जहां पे भी है तो हमने लोगों को इंटरेक्शन सेंटर बना के रखे। इफ यू गो, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। तो लोगों में एक अवेयरनेस आ रहा है कि हर पेड़ पेड़ नहीं होता है। जो बायोडाइवर्सिटी अर्बन स्पेस में हमने इतने घर बना लिए हैं, कि वाइल्ड लाइफ, जैसे हमने देखा ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच एंड नेचर सेंट्रिक अप्रोच, तो हम जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो हम एक ह्यूमन सेंट्रिक व्यू से देखते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, एंड दैट इज अ कंप्लीटली रॉन्ग एंड डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस। आप बहुत ही सेल्फिश हो रहे हैं। एंड आपको मैं बताना चाहूंगा आदित्य, वी आर 0.01% ऑफ दिस अर्थ मास। पूरी दुनिया में जितना धरती का वजन है या मास है, उसमें से हम 0.01%, 1% भी नहीं, और हमने लगभग आधे परसेंट से ज्यादा धरती को बर्बाद करके रखा हुआ है। और रीजन, हम इगोसेंट्रिक अप्रोच कि नहीं, ह्यूमन के लिए क्या अच्छा है। तो ग्रीन यात्रा है जो अप्रोच, एंड मेरी पर्सनल अप्रोच है कि हम इसका एक हिस्सा हैं। तो हमारे अलावा इस धरती पे और लोग हैं, तो हम जो भी बनाएं हम उनके बारे में सोचें। हम एक बटरफ्लाई के बारे में सोचें, हम एक क्या कहते हैं ड्रैगन फ्लाई के बारे में सोचें। उनका एक जो छोटे छोटे सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, दे आर, everyone is the contributing to the nature and well-being of the mother nature, but we are the only people who are destroying. So that is how to impact तो काफी ज्यादा है। लोग हमारे यहाँ जहाँ पे डंपिंग यार्ड्स होते थे, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, तो अर्बन बायोडाइवर्सिटी जैसे हमारा फोकस है कि जितने भी पक्षी, कीड़े मकोड़े, सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो इम्पैक्ट तो काफी ज्यादा। आप क्या कहते हैं, आई विल बी हैप्पी यदि आप हमारे किसी भी, आप चाहे दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, नागपुर, दिल्ली, कहीं पे भी हैं, बेंगलोर में, सो वी विल लाइक टू इनवाइट कि आप जहां पे भी चाहें तो आप हमारे किसी अर्बन फॉरेस्ट में आए, एंड यू विल सी द चेंज व्हाट हैज बीन क्रिएटेड, द फीलिंग। शहरों के अंदर छोटे छोटे जंगल बन गए हैं, जो नेचुरल फॉरेस्ट तो कोई नहीं क्रिएट कर सकता, बट एक प्रोटोटाइप है जो हमने कॉपी करके बनाए हैं। यस सर। सो आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही है कि एज ह्यूमन बीइंग्स वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द
harm that we have caused. And therefore, we should always help the biodiversity and the environment, and help the natural forests and all the animals flourish. Because हम तो आगे बढ़ रहे हैं, मगर हमें अपने अंडर में जो चीजें आती हैं, because we are the top species on earth at the moment, we should not take advantage of Mother Nature's care. And I think this is very important for people, because people do not think about the consequences, because many of the problems as of now have become very large because of humanity only, such as global warming, and then there is pollution, and then there is see, in Delhi there is asthma happening to people. So everything comes back to us only. If we take care of earth will take care of us. So I think that kind of mentality people should have, and help solve this problem. So as of now, sir, you have transformed many dumping yards and debris yards into flourishing urban forests, and this is very unique, and not many people do this. But what kind of key processes and steps that do you take are important to how you transform a certain area? Can you tell us about the process? सो उस काम को करने में बहुत ही मजा है, जिसको लोग बोलते हैं कि इट इज नॉट डूएबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कचड़े का यार्ड है, डंपिंग यार्ड. सो व्हेन वी गो फॉर द लैंड, सो वी डू द प्लांटेशन ओनली इन द गवर्नमेंट लैंड्स, because these land are dedicated green belts, degraded land where no development can happen. So we ensure that. So first we check out the lands. और जैसे जब बोलते हैं कि हमारे पास गार्डन पार्क्स तो है नहीं ऑलरेडी, तो बोले डंपिंग यार्ड है जो क्लोज हो चुके हैं, जहां पे आपने कचरा डालना बंद किया है, कैन यू गिव अस? सो जो बायो माइनिंग अब लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कैपिंग कर रहे हैं, सो वी रीच आउट टू देम एंड देन वी डू द प्रॉपर एनालिसिस एंड सर्वे स्टडी ऑफ दैट एरिया. हमारी टीम में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, जैसे एग्रोनॉमिस्ट हैं जो सॉइल साइंटिस्ट होते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट जैसे बर्ड एक्सपर्ट हो गए, हर्बिटोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, टेक्सोनॉमिस्ट, बॉटनिस्ट, जियोलॉजिस्ट. सो वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो वेदर कंडीशन, माइक्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट. तो हमारी एक पूरी टीम है, हम पूरी जाके उसका साइट सर्वे करते हैं कि जमीन की क्या स्टेटस है. वी डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टडी, सॉइल स्टडी, एंड देन उस पे हम प्लान करते हैं. देन आफ्टर दैट वी डू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ नियर बाई फॉरेस्ट एरियाज, जो भी आसपास के फॉरेस्ट हैं, नेचुरल फॉरेस्ट. सो आप जहां पे भी जाएं, सो ये करें डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप सॉइल रिप्लेसमेंट जरूरी है या सॉइल कैपिंग जरूरी है. तो डिपेंड ऑन द प्रोसेस करके हम सॉइल रिप्लेसमेंट करते हैं या सॉइल कैपिंग करते हैं लगभग 4 से 6 फीट तक, बिकॉज जहां तक रूट्स जाएं. बिकॉज एक डंप यार्ड को दूसरे जगह पे उठा के डालना मीन्स क्रिएटिंग अनदर डंपिंग यार्ड. और इतने बड़े बड़े डंपिंग यार्ड्स हैं कि आप उनका कचरा एक दूसरी जगह फेंक नहीं सकते जहां लाखों ट्रक क्या कहते हैं कचरा भरा हुआ है. सो आप दूसरे डंप यार्ड का बर्डन नहीं बढ़ा सकते हैं. सो इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं. देन वी गो आफ्टर दैट, एक थोड़ा सा टायरिंग प्रोसेस होता है और लोगों के लिए बोरिंग होता होगा कि क्या क्या होता है, बट वी लव टू गो इन दीज फील्ड्स. एंड देन प्लांटेशन, राइट प्लांटेशन जो लोकल ट्री प्लांटेशन होते हैं, एंड देन मेंटेनिंग. सो मेंटेनिंग फॉर 2 to 3 years. और सर्वाइवल रेट हमारा 90-95% के आसपास होता है, मोर देन 90%. सो वी कीप वॉच. हम माइक्रो मैनेजमेंट हम 2 से 3 साल तक, 4 साल तक रखते हैं, कि मीन्स पानी डालना, वाटरिंग, केयर, मेंटेनेंस, न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज हम नॉर्मल सॉइल पे नहीं ग्रो कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग इन अ डंपिंग यार्ड. एंड देन आफ्टर दैट वी कीप वॉच फॉर अनदर 10 years. सो दैट इज हाउ वी आर डूइंग. सो कई जगह डिफिकल्टीज काफी सारी होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, बट दैट्स द पार्ट ऑफ जॉब. तो आप उसकी वजह से आप काम करना. कई बार होता है कि आप एक जमीन की परमिशन लेने के लिए 4 से 5 साल लगते हैं. 4 या 5 साल आप रीच आउट करो. जिन जमीन लैंड्स की वैल्यू कई 100 करोड़ों में, hundreds of crores वैल्यू दे आर. सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु. सो वी गेटिंग द लैंड इज अ टफेस्ट जॉब इन दीज सिटीज. सो वहां पे 4 या 5 साल हम कंसिस्टेंटली कोशिश करते हैं कि गिव अस द लैंड. कई बार अच्छे ब्यूरोक्रेट्स मिल गए, so we get support. Sometimes we don't get. So now we are used to, and due to some good work, now it's become little bit easy कि हमें आसानी से लोग एग्री हो जाते हैं, लैंड देते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम सरकार से हम पैसा नहीं लेते हैं. We don't take any money from any government body. तो आपको जो भी काम करके हम दे रहे हैं, that is absolutely free. And free में ऐसा नहीं होता कि सस्ता है और मुफ्त है तो खराब है.
I believe in the quality because I am creating something larger than life and for at least generation to come, जो 100, 200, 300, 400 साल ये फॉरेस्ट अपने आप को रीजनरेटिव फॉरेस्ट होंगे। तो जब आप कोई चीज लगभग 100, 200, 300 साल के विजन के साथ बना रहे हो तो फिर आप ये नहीं देखेंगे कि क्वालिटी कंप्रोमाइज हम करें। हम छोटे से फोन खरीदते हैं 1-2 साल जो चलते हैं, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज व्हाट वी फॉलो एंड वी डू। यस सर। इतने सारे आपने सर इस प्रोसेस में आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है एंड बहुत पीपल की वजह से ये प्रोसेस चलता है और ग्रीन यात्रा अब एक बहुत बड़ा मिशन बन गया है। मगर सर इन सारी चीजों को चलाने के लिए आप पे फंडिंग कहाँ से आती है? हाउ डू यू सपोर्ट दिस मूवमेंट, बिकॉज दिस इज एन एनजीओ? Do you get support from the government or it is bootstrapped only by yourself and people that are supporting? Yeah, so we never take any government funding. हम कोई भी फंडिंग गवर्नमेंट से पैसा हम नहीं लेते हैं बिकॉज देयर इज अ सर्टेन रीजन। सारे लोग जानते हैं कि क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लोग लेते हैं, और वो यदि वो पैसा आता है तो आप अपने साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स लाता है। सो वी वर्क विद द लॉट्स ऑफ कारपोरेट हाउसेस। सो वी आर द जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके CSR फंड्स होते हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स। कई सारे जो इंडिविजुअल भी हैं हमें लोग डोनेट करते हैं, बट मोस्टली हमारा जो डोनेशन आता है दैट थ्रू द कारपोरेट social responsibility CSR. So we are working with almost 200 to 300 corporates and काम करना उनके साथ इसलिए लगता है कि वो अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान रखते हैं। वो पैसा देने के बाद उसकी ऑडिट एंड एवरीथिंग, इम्पैक्ट एनालिसिस, सारी चीजें होती, तो अच्छा लगता है कि ठीक है आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ पैसे दे के नहीं जा रहे हैं। और हमारी एक बड़ी प्रोसेस है कि हम सबके साथ काम भी नहीं करते। इफ यू थिंक यू आर गिविंग अस द मनी सो हम आपके साथ ग्रीन यात्रा आपके काम करेगा, नो। So we are not, even in the money centric. यदि आपका विजन हमारी विजन से अलाइंड नहीं है तो सिर्फ आप पैसे देके आप हमसे काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ पीपल होता है ना कि पैसे दो और काम हो जाएगा। सो ग्रीन यात्रा में ये चीजें नहीं चलती हैं। सो वी आर वेरी सेलेक्टिव अबाउट द प्रोजेक्ट फंड्स, हु इज गिविंग द मनी, what are their vision and all. So that is how, so corporate is the biggest, CSR fund is the biggest funding source for us. सर आप अपने ये जो मिशन है इसमें आप बहुत सारी इनोवेटिव मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स इस्तेमाल करते हैं एंड मैंने देखा है कि आप क्या कहते हैं एंशिएंट वैदिक इंडिया से भी बहुत इंस्पायर्ड है। सर कैन आप ये सारी अप्रोचेस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं इन सारे प्रोजेक्ट्स में, और आपका इन मॉडर्न अप्रोच और एंशिएंट वैदिक अप्रोच का कॉम्बिनेशन से प्रोजेक्ट एनहांस कैसे होता है और आपका काम आसान कैसे होता है, और इससे हम क्या सीख सकते हैं? See, if you see that we are one of the oldest civilization in the earth. Yes. हमारे 5,000-6,000 सालों के रिकॉर्ड मिलते हैं कि we have been and we are existing since then. And हमारे जो वेदाज हैं, सबसे बड़ी बात है हमें बहुत सारी चीजें गलत पढ़ाई गई जो हमने स्कूल, कॉलेज या एग्रीकल्चरल कॉलेज, बॉटनी, जुलॉजी जो जहां पढ़ाया जाता है ये प्लांट से रिलेटेड, वो चीजें पढ़ाई ही नहीं जाती। सो आई रेड द बॉटनी, जुलॉजी, ये सब सारी चीजें मैंने पढ़ी हुई है। देन वी केम अक्रॉस की जैसे व्हेन वी स्टार्टेड रीडिंग सम बुक्स, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो अयोध्या में जो भी काम हो रहा है, अयोध्या को एक क्लाइमेट स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। हाँ जी। जो इंडिया की पहली क्लाइमेट, और बाय द फॉर्चुनेट grace of God, भगवान श्री राम, I'm one of कंसल्टेंट था कि वहां जो भी प्लांटेशन होगा वैदिक टाइप का प्लांटेशन होगा, रामायण इंस्पायर्ड प्लांटेशन होगा। सो आई थिंक वी आर द ओनली पीपल, जैसे ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, सो जो वैदिक चीजें, सो यदि आप सोचे कि 5,000 साल पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि यदि रामायण काल में या महाभारत काल में राजाओं के गार्डन हुआ करते थे, वो गार्डन कैसे रहे होंगे? वहां पे जैसे देवराई वन हमारे यहाँ होते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं जो हजारों सालों से हमारी परंपरा को कैरी कर रहे हैं, साथ में एनवायरमेंट को। यदि आप जाएं तो हमारी एक अप्रोच ऐसी होती थी कि हर चीजें होती थी, प्रकृति को हम पूजते हैं, हमारे यहाँ नदियां माताएं माता की तरह, हम वृक्षों की पूजा करते हैं। आई थिंक वी आर द ओनली सिविलाइजेशन, तो ये हजारों साल से चला आ रहा है। तो जब मैंने उनको जानने की कोशिश की तो जनरली हमारे कॉलेज और इन चीजों में तो मिलती ही मॉडर्न में चीजें। देन आई स्टार्टेड रीडिंग different kinds of हमने I have already read about the महाभारत, सारे वेद, रामायण, ये सारी चीजें जब पर्सनल स्टूडेंट when I was in the college, वो साइन आता था पेड़ वाला
संदर्भ, बट मैं उस पर फोकस नहीं होता. बट नाउ आई एम मोर फोकस ऑन द एनवायरमेंट. देन आई स्टार्ट रीडिंग ऑल दिस अगेन, एंड वो डेटा कलेक्ट करना शुरू किया हमने. देन आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे यजुर्वेद, सामवेद है, उसी तरह हमारे यहाँ वृक्षुर आयुर्वेद, जो पूरी प्लांट लाइफ पे जो हजारों साल पुराना है. और जब उसमें आप पढ़ेंगे ना, इट विल ब्लो अप योर माइंड कि पेड़ उसमें ये बताए कि पेड़ को कौन से दिशा में लगाना चाहिए, आपके घर में कौन से दिशा में नहीं लगाना चाहिए, स्कूल के पास कौन सा पेड़ होना चाहिए, घर के पास कौन सा पेड़ होना चाहिए, हॉस्पिटल के पास कौन सा पेड़ होना चाहिए. इस पेड़ का आपके इम्पैक्ट जो क्या कहते हैं इमोशंस पे, साइकोलॉजी पे क्या हो सकता है, हेल्थ पे क्या हो सकता है. मतलब इतनी इंटेंस स्टडी आई थिंक कि मैंने रूटलेज ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री भी मैंने पढ़ी है, जिसे बाइबल, गीता, कुरान, वॉट एवर यू कैन से दैट की मानते हैं. जब मैंने ये पढ़ना शुरू, तो हमने मॉडर्न साइंस में ये तो जाना कि ये एक पेड़ दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करता है. फंजाई को हमने जाना, कम्युनिकेशन मीडियम को जाना, बट हमारा जो साइंस है उसका हम पे क्या इम्पैक्ट है. आपको मैं सिंपल से यदि आप बताऊं, पीपल का पेड़, चाहे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई हिम्मत नहीं करता कि क्या कहते हैं आप उसको उखाड़े. बरगद का पेड़ हमारे गांव के बाहर होता था. देवराई वन राई, देव वन जिन्हें बोलते थे, सेक्रेड ग्रुप होते थे. उनका पर्पज क्या था? सो वी आर द पीपल कि हमने वृक्षरायवेदा, ब्रह्म संहिता, ऋग्वेदा, वन पवन विनोद. उस समय बाली के पास दुनिया का सबसे खूबसूरत गार्डन हुआ करता था, जिसे गार्डन ऑफ हेवन बोलते थे. इवन सो उसका हमारे पास पूरा डेटा है. इफ यू टॉक अबाउट अशोक वाटिका में अशोक सिर्फ पेड़ नहीं थे. जैसे आप देखिए दिखाता है कि हनुमान जी फ्रूट्स भी खा रहे हैं, ये हैं. सो और कौन कौन से, वो पूरा डेटा हमने. अब ये सब आप जब डिग करना शुरू करते हैं ना, जब बोलते हैं कि व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट इट, सो हमने वो चीजें यूज करनी शुरू करी. आप देखिए जैसे नक्षत्र वन होते हैं, राशि वन होते हैं, पंचवटी वन होते हैं, सप्त ऋषि वन होते हैं, एंड देन त्रिवेणी होते हैं, पंचवटी होते हैं. जैसे आपका सन साइन क्या है, सभी आप देखें. सो आपके सन साइन के हिसाब से पेड़, आपके नक्षत्र के हिसाब से, कि आपका ये नक्षत्र ये है तो ये पेड़ लगाना चाहिए आपको. मतलब इतना इंटेंसिव डेटा आई नेवर रेड एनीवेयर. सो आप मेरे घर यदि कभी आए, इतने मोटे बंडल रखा है. और ये बुक क्या है, आपको ई बुक नहीं मिलते जनरली. सो आई स्टार्ट सर्चिंग कि कहाँ पे अलग अलग लाइब्रेरी, कहाँ कहाँ पे है, किसी ने ये किया, कहाँ कहाँ पे मिल सकती हैं. देन आई रीच आउट द लॉट्स ऑफ पीपल. सो दैट इज हाउ. सो हम वो भी चीजें फॉलो करते हैं, वैदिक और मॉडर्न. सो दैट्स व्हाई. सो जब हम वैदिक में गए तो हमने देखा कि हमारे आसपास के पेड़ का ही पेड़ हमें लगाना चाहिए. सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स वी डू. तो मॉडर्न एंड वैदिक दोनों का हम एक रेयर कॉम्बिनेशन है कि हमें मियावाकी मेथड में 2 फीट के पौधे को 2 साल के अंदर 15 से 20 फीट कैसे लेके जाना है, और वैदिक में ये ट्री का आपके इमोशन, साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट होगा, हमारी सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट. तो सर आपने ये सही बताया कि वैदिक विजडम और अपना मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन से आप फॉरेस्ट को रिजुविनेट करते हैं और उनको रिस्टोर करते हैं. और आप एज अ स्टूडेंट ऑफ मदर नेचर, आप व्हाट आर द, मतलब आपने इस पूरे एक्सपीरियंस से कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लर्निंग ली है, और जो आपकी जिसने आपकी अप्रोच को शेप किया है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ. So go is for the nature. The best thing I have learned, I have read hundreds of books. So I am avid reader. मतलब हर महीने में 3 से 4 किताबें खत्म करता हूँ. So ये मेरे रूटीन में शामिल है. So far thousands of plus books I have read. So जिसमें environment से related, forest से related. So मुझे after reading lots of books, I realized that the best way is to go is for the nature. आप जाइए, नेचर को समझिए, and it will show you the way how to restore. So whenever we do, जैसे हमने पूरा एक स्टडी करते हैं हम लोग, and then we go in the forest. So हम फॉरेस्ट में जाके चीजें सर्वे करते हैं कि क्या क्या बेहतर तरीके से चीजें हो सकती हैं. So that is model we follow generally. कि whatever is for the nature situation, pre-decided चीजें नहीं होती. So each and every site is different, and nature is so magical. आप जितनी बार फॉरेस्ट में जाएंगे, you will learn lots of things. The more you learn, so you realize less you know. हर बार आप जंगल में जाइए, फॉरेस्ट में जाइए. नेचर इज सो फार वास्ट, वी आर 0.01% ऑफ इट. सो कोशिश है कि हम नई नई चीजें सीखें और जानें और एक्सप्लोर करें. एंड सबसे ज्यादा जो हमें नॉलेज मिलता है, आई थिंक कि आदिवासी, जो इंडिजीनियस पीपल जिन्हें हम बोलते हैं,
जिन्हें हम बोलते हैं कि अनएजुकेटेड हैं ये लोग, और क्या है उनके पास ऐसा नॉलेज का ट्रेजर है जो हमें किताबों में नहीं मिलता है। एंड फ्रॉम देम वी लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड हमारे काफी सारी टीम में भी लोग हैं जहाँ पे हम फॉरेस्ट सर्वे के लिए जाते हैं, सो वी ऑलवेज कनेक्ट विद द लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल, देन वी कनेक्ट विद द लोकल ट्राइब्स, जो इंडिजीनियस लोग वहाँ रहते हैं जंगलों में, जंगल को समझते हैं, तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर आल्सो फॉलोइंग। यस सर। तो आपने आपने पहले थोड़े लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में आपने ये बोला था कि आपने मियावाकी अप्रोच, और आपने आपने 100+ मियावाकी फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट और फ्रूट फॉरेस्ट आपने क्या कहते हैं बिल्ड किया, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आपने की। मगर आप थोड़ा सा इन डिटेल आप कॉन्सेप्ट बताएंगे क्या मियावाकी प्लांटेशन एंड क्या कहते हैं क्या होता है, और वो दूसरी टाइप की प्लांटेशन या ट्रेडिशनल फॉरेस्ट मेथड से कैसे डिफर करता है? या सो मियावाकी इज इन्वेंटेड बाय ए मेथोडोलॉजी है जो जापानीज बॉटनिस्ट है अकीरा मियावाकी जी थे, एंड उनने जापान में ये मेथड का इन्वेंशन किया था। और बेस ये था कि यदि हम बात करें कि मियावाकी इज सच अ ब्यूटीफुल मेथड विच इज नेचर सेंट्रिक अप्रोच की एक प्लांटेशन मेथोडोलॉजी है, जिसमें लोकल सॉइल एनरिचमेंट एंड नेटिव वेजिटेशन पे वर्कआउट होता है। कि काम जो दो बेस हम बोलें कि जो प्रकृति को नेचर तरीके से हम सॉइल को कैसे रिवाइव करें, और जो बड़े फॉरेस्ट है उनका प्रोटोटाइप नेचुरल फॉरेस्ट को छोटे वर्जन में कैसे, उनका एक मिनिएचर कैसे क्रिएट करें, एंड दैट इज हाउ। सो इसमें काफी सारी चीजें हैं, यदि आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे। अभी तो कुछ दिन पहले हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने इस मेथड को एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, एंड स्पेशली द अर्बन स्पेस जहाँ पॉल्यूशन बहुत हाई है, जगह का प्रॉब्लम है। तो वी यूज दैट मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल प्लांटेशन मेथड है उसमें पेड़ों का जो डिस्टेंस होता है वो काफी होता है। मीन्स 1 एकड़ में आप 200, 500, 1000 या 2000 पेड़ लगा सकते हैं एक में। इसमें 10 टाइम्स ज्यादा पेड़ लगते हैं। इसमें एक पैटर्न होता है, जैसे कन्वेंशनल में लोग मोनोकल्चर एक ही तरफ के पेड़ लगा दिए, जैसे हमारे गांव में पूरे आम के बगीचे हैं तो आम के। इसमें जंगल में आप जाइए, स्टडी कीजिए, तो लगभग 15 से 20 जितनी मतलब मिनिमम जो स्पीसीज होती है कि एक मल्टी स्टोरी फॉरेस्ट होता है। कुछ पेड़ होते हैं जो श्रब्स होते हैं, छांव में उगते हैं, कुछ हैं जो 5-10 फीट तक जाते हैं, कुछ 15-20 फीट तक जाते हैं, कुछ 40-50 तक जाते हैं, कुछ 100+ जाते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन होता है। So it's a multi-story forest and the local vegetation, local native vegetation. यदि उस जमीन को खाली छोड़ दिया जाए तो अगले 200, 300, 400 साल में जो फॉरेस्ट जनरेट होंगे वो क्या होंगे। सो दैट इज लाइक अ पोटेंशियल नेटिव वेजिटेशन मेथड ये होता है, जिसमें ये होता है तो आसपास की जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनका सर्वे किया जाता है, एंड देन इट इज प्लांटेड। और इसमें सॉइल एनरिचमेंट के लिए आप वाटर रिटेनर, परफोरेटर्स और न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं। सो नो केमिकल यूज, जैसे लोकल मटेरियल जैसे राइस हस्क हो गया, कोकोपीट हो गया, बगास हो गया गन्ने का, देन कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, फार्म यार्ड मैन्यूर हो गया, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ब्यूटी ऑफ दिस प्लांटेशन मेथड इज कि जनरली प्लांटेशन को काफी केयर करना पड़ता है काफी टाइम तक। इसमें 2 साल में 2 फीट का पौधा 15 से 20 या 25 फीट तक ग्रो होता है, एंड दिस इज 10 टाइम्स फास्टर इन द ग्रोथ एंड 30 टाइम्स मोर डेंसर, 30 टाइम्स मोर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स इसमें पक्षियों के लिए हर चीज है, कीड़े मकोड़ों के लिए चीज है, बटरफ्लाइज के लिए है, बम्बल बीज के लिए है, बीज के लिए, मतलब दिस इज सम एवरीवन। जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है इसमें बेटर होता है देन द कन्वेंशनल प्लांटेशन एंड मोनोकल्चर, एंड आफ्टर 2 years यू वांटेड टू टेक केयर ऑफ देम। तो आप 2 साल तो 2 या 3 साल के बाद आपका एक छोटा सा बायोमिक ऑफ द फॉरेस्ट रेडी हो जाता है, एंड देन आप चाहे डंपिंग यार्ड्स हो जहाँ डिग्रेडेड लैंड, स्पेशली जहाँ नॉर्मल प्लांटेशन नहीं हो पा रहा, उन जगहों पे हमने सक्सेसफुली इस मेथड को किया है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। जैसे हमारे में पहले वन राई मेथड होता था जो हमारी नेटिव मेथोडोलॉजी है, उसी का एक वेल रिफाइंड वर्जन है। So we have to appreciate that Akira Miyawaki जी की he developed that method, and ये मेथड जहाँ पे भी जाती है वहां के लिए लोकल हो जाती है। That's a technique of plantation जो लोकल नेटिव स्पीसीज और मटेरियल यूज करके हम करते हैं। एंड प्रॉब्लम अभी ये हो रही है कि
बहुत सारे लोग सिर्फ नाम यूज कर रहे हैं, दे आर डूइंग जस्ट एनीथिंग इन द नेम ऑफ प्लांटेशन। एडल्ट्रेशन हो रहा है, फॉरेस्ट सर्वे नहीं करते, जो उनके एथिक्स हैं उनका यूज नहीं हो रहा, नेटिव स्पीसीज नहीं लगाए जा रहे हैं। सो उसके निगेटिव इम्पैक्ट भी आने शुरू हो गए हैं। लोग इसको काफी, बहुत लोग हैं जो पसंद नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और रीजन इज दैट कि यदि आपको पता नहीं है तो गो फॉर द ट्रेनिंग, टेक द ट्रेनिंग, नो व्हाट इज दिस मेथोडोलॉजी। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, स्पेशली जहाँ जगह कम है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर जिस तरह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, शहरों में जगह का प्रॉब्लम है, वहां के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। तो मियावाकी प्लांटेशन मेथड बेसिकली आपके कहने से एक इफिशिएंट मेथड है जिससे आप टाइम बहुत बचा लेते हैं, एंड आई थिंक दिस इज ये प्रोसेस आपके प्लांटेशन का जो आपका गोल है उसमें भी बहुत मदद करता होगा, एंड आई थिंक दिस इज वेरी एफिशिएंट, एंड टेक्नोलॉजी का भी बहुत फायदा होता है, और आज के जमाने में बहुत एडवांसमेंट्स हो गए हैं। मगर सर, आप प्लांटेशन और आप पेड़ तो उगाते हैं और आप फॉरेस्ट भी रीइंस्टेट करते हैं, मगर साथ में आप वाटर बॉडीज को भी आप रिस्टोर करते हैं। तो वाटर बॉडीज तो क्रिटिकल होती हैं इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, और उसमें भी बहुत फ्लोरा और फौना होता है। एंड कैन यू शेयर सम, आप कुछ स्टोरी शेयर कर सकते हैं जिसमें आपने वाटर बॉडी को रिस्टोर किया है एंड उसका क्या इम्पैक्ट आया है उस एनवायरनमेंट में और उस उधर की फ्लोरा एंड फौना में? So see, we are, जैसे आई एम अ ट्री लवर, बट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे वर्क ऑन द वाटर बॉडी रिस्टोरेशन, कार्बन फुटप्रिंट ऑडिट, काफी क्लाइमेट एजुकेशन पे काम करता है। तो जितने वाटर बॉडीज हैं, सो इंडिया में पहले करोड़ों की संख्या में वाटर बॉडी होते थे। यदि आप जाएं तो लगभग 20 से 25 लाख पॉन्ड्स का डेटा सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्टेट में है, जहां अभी ऑफिशियली 2 लाख बचे हुए हैं। जहाँ पे कभी ये क्या कहते हैं पॉन्ड या वाटर बॉडी होते थे, वहाँ गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, स्कूल बने हुए हैं, लोगों ने इंक्रोच करके खेती कर रहे हैं, लोग बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पे मैदान बन गए हैं। और अब जितने भी हैं वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों की, गंदा पानी आ रहा है, भर रहे हैं, 30 40 साल से उन वाटर बॉडी को रिस्टोर नहीं किया गया है। सो हम ऐसे वाटर बॉडी जहाँ पे भी, जैसे हमने दिल्ली एनसीआर में किया, तो कुछ एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं जहाँ जरूरत होती है। आई वुड लाइक टू शेयर one of the project we did in यहाँ बेंगलोर में बिंगीपुरा लेक, वो लीचेट था, एक बिंगीपुरा डंपिंग यार्ड है उसके नीचे था वो, तो पूरा लीचेट की तरह होता था, उसमें पानी तो दिखता था बट जहरीला जैसा पानी था, ना तो उसको पी सकता था कोई, ना जानवर पी सकते थे, फ्रेश वाटर नहीं था, फिशेस नहीं थी, उसको हमने रिस्टोर किया। नाउ अभी उसमें ऐसा है कि पूरी फिश इकोलॉजी है, लोगों के लिए आसपास हो गया, जो आसपास रहते थे उनके लिए लगभग 4 से 5 हजार लोगों की लाइफ उससे इम्पैक्ट हुई है। तो आसपास के बोरवेल थे वो पूरे सूख रहे थे, तो वो रिवाइव हो चुके हैं, बिकॉज उसकी कई करोड़ों लीटर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। तो बहुत जगह हमने ये देखा कि जो बोरवेल ड्राई हो चुके थे उनमें पानी आना शुरू हो गया, फार्मिंग के लिए 100-200 एकड़ की लैंड के लिए इरिगेशन के लिए वाटर इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जो फिशेस आ रही हैं, सो उसमें बर्ड्स आ रही हैं, उसमें मतलब एक पूरा इकोसिस्टम, हम आसपास पेड़ नेटिव ग्रो करते हैं। सो बहुत सारे इम्पैक्ट है। कुछ ऐसे तालाब हैं जो 40-40, 50-50 साल से रिजुमिनेट ही नहीं हुए थे, 10-10, 20-20 फीट उसमें, और हमें लगता है कि ये पानी भरा हुआ है, नीचे एक प्लास्टिक की तरह वो लेयर बनाते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता फील्ड की वजह से और इन चीजों की वजह से। तो काफी सारी चीजें जो वाटर बॉडी से भी है और जरूरी भी है, क्योंकि हम एक वाटर स्ट्रेस कंट्री में आते हैं। एक तरफ आप देखिए चारों तरफ इस समय बाढ़ का सीजन चल रहा है, मानसून में 60% इंडिया बाढ़ की चपेट में है, और दूसरी तरफ ये हो जाता है कि जब समर सीजन आता है तो वही 60% एरिया में पानी पीने के लिए नहीं होता है। तो हम जितना सरफेस पे पानी गिरता है उसको कैसे स्टोर कर पाए, उसको कैसे बचा पाए, हमारे पास पानी की कमी नहीं। तो यदि तालाब हैं, ये जो लेक्स हैं, वो अब इस तरह हमने कर दिए हैं, और पानी एक्सप्लॉयटेशन ग्राउंड वाटर हम काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, जो तालाब है उनको हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्या कुएं हैं वो अब खत्म हो चुके हैं, हैंडपंप में गंदा पानी आना शुरू हो गया है, तालाबों की तो हम केयर ही नहीं करते। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन्हें रिवाइव करें, तो जो बारिश का पानी हो तो इसमें आएगा ही आएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो आसपास के बोरवेल रिचार्ज होंगे, तो गाँव के लिए, लोगों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए, पक्षियों के लिए, इट्स लाइक अ होल इकोसिस्टम। एक्वेटिक जो हम उसमें फिशेस भी यूज करते हैं वो नेटिव यूज करते हैं, जो वहाँ की नेटिव हुई, जो प्लांट्स हुए, तो पूरी एक इकोलॉजिकल स्टडी। इवन हमारी टीम ने छोटे छोटे इकोसिस्टम की स्टडी हम कर रहे हैं अपनी ऑफिस में,
तो क्या क्या हम जो नेटिव स्पीसीज है, तो छोटे हमने पॉन्ड बनाए, कौन कौन सी हाँ फिशेस जी। डाले, उसकी काफी सारी चीजें, और उनको एक हम बड़े स्केल पे वही चीजें हम ये करते हैं। जैसे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम उसको कैसे डेवलप करें अपार्ट फ्रॉम द रेस्टोरेशन। सो हाँ ये जी। करने के बाद इवन, सो दैट इज हाउ वी आर डूइंग द वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज के साथ साथ प्लांटेशन में आप लोगों ने बेसिकली पूरी बायोडाइवर्सिटी एंड पूरी इन्वायरमेंट में ग्रोथ होती है, और पानी जो होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एनिमल्स, फॉर दी insects, for the flora and fauna there. I think this is really interesting. And आपका जो काम है वो सारे एस्पेक्ट से फोकस करता है, एक पे ही नहीं। तो सर जी जैसे बहुत सारे लोग हैं बाहर जहाँ पे जो काम करते हैं मगर उनपे समय नहीं होता कि वो ज्यादा समय इन्वेस्ट कर पाए, मगर वो अपनी मदद करना चाहेंगे, क्या एडवाइस होगी उन यंग पीपल के लिए जो पैशनेट है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में और कुछ डिफरेंस बनाना चाहते हैं, आपके मिशन में है, और आप पेड़ों में और अपने इन्वायरमेंट में वो डिफरेंस लाना चाहते हैं? यदि आप कोई भी ऐसी चीज करना चाहते हैं, सो आप अपना थोड़ा सा टाइम, वी आर, आई नो दैट सबके लिए पैशन नहीं होता है, बट पीपल आर इंटरेस्टेड, बट उनकी अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बच्चों के स्कूल्स होते हैं, एडल्ट जो और बड़े बच्चे होते हैं उनके कॉलेजेस होते हैं, बाकी पब्लिक जॉब करते हैं, पेरेंट्स करते हैं। सो जितना भी टाइम आपको मिले तो अपने आसपास, यदि आप लगता है कि आप अपने घर के आसपास प्लांटेशन कर सकते हैं तो वहां पे कीजिए और उनकी केयर कीजिए। आप अपने घर पे प्लांट ला सकते हैं, ज्यादा नहीं तो फ्लावरिंग प्लांट लगाइए, और फ्लावरिंग में एक है नेटिव स्पीसीज। यदि आप स्टडी करें अपना, आज देखिए इंडिया में लगभग 3 से 4 घंटे स्क्रीन टाइम, यानी स्पेशली मोबाइल स्क्रीन टाइम है, सब लोग कंप्यूटर के सामने नहीं बैठते हैं, तो स्क्रीन टाइम में आप छोटे छोटे कितने सारे वीडियो रील्स, ये सब सारी चीजें, दैट इज क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अपने स्क्रीन टाइम का 5 से 10 मिनट टाइम, ये 5 से 10% टाइम, यदि आप 1 घंटे देखते हैं तो 15-20 मिनट ऐसी चीजें आप सर्च करना शुरू कीजिए कि हाउ आई कैन जो भी आपको लगे एनवायरनमेंट को कैसे सेव करें। और जब भी मौका मिले छुट्टियों के टाइम में, वीकेंड में, तो आसपास हर जगह, जैसे ग्रीन यात्रा नहीं पर एनजीओ हर जगह जो काम कर रहे हैं, तो आप उनकी जगह पे जाके वॉलंटियरिंग करें, ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिल सके। स्कूल्स में हो गए, जैसे आप बड़े, जैसे 2 टायर सिटीज हैं जहाँ बड़े बड़े कैंपस होते हैं स्कूल्स के, अपने स्कूल्स में ऐसे लोगों से, अपने टीचर से रिक्वेस्ट करें कि हमें कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट करें जो ये चीजें हमें ये कर सकें, हमारे यहाँ पे ऑन हैंड एक्सपीरियंस हो सके। तो आप जितनी भी सारी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं ना, आप बिजली बचाएं, पानी बचाएं। आपको मैं बताना चाहूंगा आज इंटरनेशनल टाइगर डे है, और आपको पता है जो टाइगर है हमारे टाइप वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ जंगल को नहीं बचाते हैं, जंगल है, शेर है तो जंगल है, और हाँ जंगल जी। है तो हम हैं। बट बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अच्छा शेर यदि है तो पानी कैसे बचाते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन यही भी छोड़ना चाहूंगा आपके ऑडियंस के लिए कि वो सर्च करें। बट जो जो जब भी मौका मिले, देयर इज एन नंबर ऑफ वे, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल एंड वॉलंटियरिंग करें। मतलब एटलीस्ट इतना तो टारगेट, मैं बताना चाहूंगा, मैं खुद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर करता हूँ, और बहुत जगह ऐसे जाता हूँ कि लोग जानते नहीं कि व्हाट आई एम डूइंग एंड नॉट डूइंग। So anonymous होके just because we are ऐसा नहीं कि हमें सारे लोग जानते हों, there is a lots of people know about us, but there is a still we are not a celebrity कि हमें सब सारे लोग जाने, और कोई जरूरत भी नहीं है इन चीजों की। we are doing what we love, so I still do the lots of volunteering जहाँ पे मुझे लगता है कि जाके सीखें, because nature is so vast, so that is small process, but आप 5-10% अपने स्क्रीन टाइम का डालिए, उसमें आप वॉलंटियरिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं। डू आप घर पे कुछ कीजिए, कोई पेड़ ग्रो कीजिए, किचन गार्डन छोटा सा बनाइए। इवन आपको पता होना चाहिए कि आपकी सब्जी जो घर में लेडी फिंगर आती है और मिर्ची जो हम सब्जी में डालते हैं, उसको वो कितने टाइम में ग्रो होती है। आप एक पेड़ उसका लगा के देखिए, एंड इट विल बी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। वो जो हम 10 रुपए की इतनी सारी लेके आते हैं और यूज किया, फेंक दिया, बट वो ग्रो कैसे होती है। तो न्यू जनरेशन को स्पेशली ये जानना चाहिए कि उनका खाना ग्रो कैसे होता है, तो आप अपने घर पे चीजें कर सकते हैं। तो देयर इज एन नंबर ऑफ थिंग्स दे कैन डू। यस, आई थिंक आपकी जो मिशन है वो बहुत ही अच्छा है, एंड पीपल शुड सपोर्ट यू इन देयर ओन वे, बट एज अ पर्सन आप अपने एनवायरनमेंट में देखिए और चेंजेस आइडेंटिफाई करिए और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करिए, और अपने स्टेप्स में आप साल में
50 ट्रीज 100 ट्रीज प्लांट करिए, या फिर आप 10 ट्रीज प्लांट करिए पर मंथ। अगर आप अपने आप से खुद से करेंगे, ट्रीज उतने महंगे नहीं होते, आप जगह ढूंढ के अच्छी तरीके से अगर आप काम करेंगे और आपका डेडिकेशन होगा तो आप अपने इन्वायरमेंट में चेंज ला सकते हैं, और दूसरे लोगों को भी आप अपनी आइडियोलॉजी में ला सकते हैं और सपोर्ट करवा सकते हैं सर के मिशन में, और ओवरऑल इन्वायरमेंट को चेंज करना और उसे अच्छा बनाना और उसे वापस एकदम फ्लरिश करवाना। सर आप ये बताइए कि आपके काम ने बहुत सारे न्यूमरस अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन गार्नर किए हैं पीपल से और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से भी, एंड आपको ये अवार्ड्स मोटिवेट करते हैं आपकी एफर्ट्स को कंटिन्यू करने में, और हाउ दिस इज रेजिंग द अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज? यदि पर्सनल लेवल पे यदि आप मेरे से पूछें, हाँ जी, तो मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आई एम लिटिल बिट स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। तो मुझे लगता है मेरा जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है ना, जब मैं जाता हूँ जहाँ एक डंपिंग यार्ड होता है और 2 साल बाद वहां पे एक घना जंगल खड़ा होता है, जहाँ पे मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड ये होता है, दीज आर द बाय प्रोडक्ट। बट डेफिनेटली कई बार होता है कि लोग आपके पास जितने अवार्ड हुए, उतना रिकॉग्नाइजेशन, उतने मीडिया कवरेजेस, उतने लोगों तक आप रीच आउट कर सकते हैं। तो ये कोई मैसेज पहुंचाने का एक बहुत अच्छा मीडियम है कि जब आप अवार्ड फंक्शंस होते हैं, आप वहां जाते हैं, मीडिया कवरेजेस होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मीडिया कवरेजेस। आपने भी हमारे बारे में कहीं यू हैव रेड समवेयर, जब आपने सर्च किया होगा, या ये सब सारी चीजें हैं। सो दैट्स गुड प्लेटफॉर्म टू रेज अवेयरनेस एंड रीच आउट टू द मोर एंड मोर पीपल, कि जहां हम और लोगों को, वी डोंट नो, जैसे छोटे छोटे लोगों का कौन सा एक्ट किसको कहाँ इंस्पायर्ड कर जाए, यू नेवर नो। सो ये एक बेहतर ये है। एंड मेरे लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है जब मैं एक पौधे को देखता हूँ और उसमें अर्बन फॉरेस्ट को देखता हूँ, उसमें हजारों तितलियां उड़ रही होती हैं, पक्षी उड़ रहे होते हैं। तो आई थिंक कि जब अवार्ड नहीं मिले थे तब भी वही मोटिवेशन था। जब हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया तो हमें तो कोई जानता तक नहीं था, वी स्टार्टेड विद दैट मोटिवेशन। तो वो इग्निशन, जो वो आग है अंदर आपके, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है आपके लिए, और मेरे लिए आज भी है वही, कि जो लव फॉर एंड पैशन फॉर द नेचर। और डेफिनेटली हमारी टीम को इससे मोटिवेशन मिलता है कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे लीडरशिप को अवार्ड मिला है, तो उनके लिए जरूर इम्पैक्ट करता हाँ है। जी, एंड और लोगों के लिए, क्योंकि ये अवार्ड मिला है, तो व्हेन यू गो एंड पीपल टॉक अबाउट, हमारे यहाँ ये होता है कि भाई आपने इतने अवार्ड मिले, मींस दैट इज सम बिग पर्सन इट इज, सो यू आर डिफाइंड बाय द अवार्ड मोर एंड ऑल दीज थिंग्स। सो सबकी है, सो दैट्स द पॉजिटिव साइन। सो दैट्स अ गुड। सो मोटिवेशन तो मेरे लिए प्लांटेशन ही है, दैट इज एन ऑल एवरीथिंग इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। एंड दैट इज, ये परमात्मा की कृपा है कि हम अभी भी हम काम कर रहे हैं, लोग हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं। सो दैट्स फाइन। बट ऐसा नहीं है कि हमने इस उद्देश्य से किया है। हाँ जी, ये आपकी मेहनत को वेरीफाई कर रहा है, लोग आपको देखते हैं एंड दे आर इंस्पायर्ड बाय यू, एंड इट इज वेरीफाइंग कि आप जो काम कर रहे हैं इट इज फॉर द ग्रेटर गुड, एंड आपका पैशन तो बहुत है, एंड पीपल सी इट, एंड therefore you are awarded, and this is really great to see, क्योंकि आपके जैसे लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोग असली में कम्युनिटी में डिफरेंस ला रहे हैं। सर, आपने इतनी सारी चीजें अभी कर रखी हैं, आपने 13 लाख ट्रीज प्लांट करे हैं, आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, आपने ग्रीन यात्रा चालू करा, और आपने अभी तक बहुत कुछ अचीव कर रखा है, और आपका फ्यूचर में भी प्लान है 2 करोड़ ट्रीज प्लांट करने का। मगर उसके अलावा आपका क्या प्लान है, और कौन सा प्रोजेक्ट आप अभी वर्क कर रहे हैं जिसपे, और आप कौन सा प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, क्या प्लान कर रहे हैं? यस, जैसे हमारा एक 10 करोड़ ट्रीज है जिसमें हम प्लांटेशन का कर रहे हैं। एक हमारा प्लांटेशन के अलावा ग्रीन यात्रा इज नाउ एनवायरमेंट सोल्यूशन एनजीओ। सो एक विजन ये है कि डेफिनेटली ट्री एंड दैट इज माय लव, बट हमें जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कार्बन फुटप्रिंट ऑडिट में, तो ट्री हमारे पास अब वो सिचुएशन में हम लोग पहुंच रहे हैं कि जगह नहीं होगी प्लांटेशन के लिए शहरों में, शहरों के आसपास। जैसे होता है ना, पहले डंपिंग यार्ड होते थे, अब डंपिंग यार्ड भर गए, तब सरकार बोल रही है कि सेग्रीगेशन एट द सोर्स, अपने घर पे कंपोस्ट कीजिए, अपनी सोसाइटी पे कीजिए। तो वो सिचुएशन अब आ रही है। सो ऑन द फ्यूचरिस्टिक सोच हमारी ये है कि हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अवेयरनेस, कटिंग डाउन कार्बन एट द सोर्स,
या आपके घर पे। इसीलिए हमने क्लाइमेट एजुकेशन शुरू किया कि अवेयरनेस जब होगी, इस कचरे को नहीं फेंकें, या बिजली जलाने से, यानी आप हम यूट्यूब पे या इस पे हम बात कर रहे हैं, इसमें भी काफी सारा कार्बन जनरेट हो रहा है। तो कटिंग डाउन कार्बन एट द सोर्स। देन रिसर्च में हम लोग एंटर कर चुके हैं, सो वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ रिसर्च वर्क, इनोवेटिव मेथड्स। पब्लिक को हम अवेयर कैसे, पहले भी अवेयर में थे, और प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट करें। सो वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट जो क्लाइमेट एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। ग्रीन स्कूल को हमने रिवाइव किया है, कैंपस को किया हुआ है। वी आर एंटरिंग इन द रिसर्च वर्क, जहाँ एक एथेंटिक रिसर्च हो और उसका सोल्यूशन रिसर्च आने के बाद हुआ कि ये प्रॉब्लम है, उसको ऑन ग्राउंड कैसे करें। और सबसे बड़ा जो हमारा स्कोप है ऑन ग्राउंड, क्योंकि आप एनवायरनमेंट को पीपीटी प्रेजेंटेशन और सिर्फ रिसर्च से नहीं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते। वो डेटा अवेयरनेस आ गया, पर ये आपको पेड़ ग्रो करना है तो जमीन पे ही जाके करना होगा, और उसको 3 से 4 साल मेंटेन करना होगा। सो हम लोग और बड़े स्केल पे, जैसे हमने मैनग्रूव प्लांटेशन शुरू किया, टेरेस्ट्रियल प्लांटेशन कर रहे हैं। कुछ हमारा प्लान है जहां हम रिसर्च सेंटर डाल रहे हैं कि नई नई चीजों में हम रिसर्च करें। जैसे इनोवेटिव मेथड्स हैं, आप अपने घर पे क्या कर सकते हो, घर के आसपास क्या कर सकते हो, कम टाइम में कैसे चीजें कर सकते हो। हम काफी सारा रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल रिसर्च वर्क, और वी लाइक टू शेयर विद द पीपल। तो काफी सारे वर्टिकल्स हैं जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, और 1 by 1 हर साल हमारे 1-2 नए प्रोजेक्ट नए आते हैं। सो यू विल सी द लॉट्स ऑफ बेसिक जो है वो चल ही रहे हैं, एंड देन वी हैव द मोर प्रोजेक्ट्स कमिंग ऑन। हाँ जी सर, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि फ्यूचर में आई थिंक पीपल, आज की जो यंग जनरेशन है वो बहुत इफेक्ट करती है। एंड आई थिंक अगर यंग जनरेशन को ऐसे ट्रेन करा जाए कि वो अपने नेचर को कंसिडरेशन में लेके हर डिसीजन को ले, तो आई थिंक अपना फ्यूचर में जो है, जो लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होने लगेंगे। एंड इट इज ऑल अबाउट हाउ वी टीच द यंग जनरेशन। And so that's why we have a green school, a green campus हम जिसे बोलते हैं, जिसमें बच्चों को हम ये भी सिखा रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि अच्छा पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें सब ये पता है। सी यू आर, जब हम आपकी उम्र में स्कूल में थे तो एनवायरनमेंट डेफिनेटली, हम तो आई ग्रोन अप इन अ स्मॉल विलेज, सो वो चीजें अलग ही होती थी। बट हम लोग ये कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने, हमने जो आपकी ओल्डर जनरेशन ने, हम लोगों ने जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है उसे फेस भी कैसे करें। सो वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग देम कि उसको रोके कैसे, और अब जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है हम लोगों ने आप लोगों के लिए, उसको आप फेस कैसे करें। तो एक बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है हमारा है, जो हमने इसे पूरी तरह से रिवाइव किया। क्लाइमेट एजुकेशन इज फॉर स्कूल, कॉलेज, कारपोरेट, सबके लिए। बट जो ग्रीन कैंपस स्पेशली हम स्कूल के बच्चों पे और एडल्ट कॉलेज पे, स्कूल इज अ फोकस एरिया, जहां पे हम ऐसे फ्यूचरिस्टिक न्यू जनरेशन खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं जो अवेयर हो, एक्शन ले, प्रिवेंट कर सके, और जो प्रॉब्लम हो चुकी है उसे फेस भी कर सके। इट्स नॉट कि अब प्रॉब्लम हो गया, बारिश हो रही है या फ्लड आ गया या हीट वेव है, उससे कैसे अपने आप को बचाएं हम। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा है कि हीट वेव से कैसे बचें, व्हाट आर द मेजर्स, व्हाट आर द रीजंस, हाउ टू प्रिवेंट इट, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम योरसेल्फ। तो जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्राइसिस हैं, उनके लिए हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी कि आप इन चीजों को भी कई जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो विल चेक आउट इफ वी कैन वर्क टुगेदर ऑन इट। Yes, sir. Thank you, sir, for the opportunity. I would love to. And sir, ये बताइए कि आप जो यंग ऑडियंस हमें देख रही है, जो यंग पीपल हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है एज अ पर्सन कि वो लाइफ में कैसे सक्सीड करें? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में और अपने पैशन से आपने इन्वेस्ट किया बहुत टाइम, एंड नाउ यू आर गेटिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन, एंड यू आर अ फाउंडर, एंड इट इज रियली इंटरेस्टिंग टू सी योर ग्रोथ। सो व्हाट इज योर एडवाइस फॉर द यंग चिल्ड्रन? मेरी सबसे यही है कि फॉलो योर पैशन। जो आपको अच्छा लगता है, डेफिनेटली इट्स अ नॉट दैट इजी, जर्नी वाज नॉट दैट इजी, पर मुश्किल नहीं है चीजें। यदि आप कोशिश करेंगे तो मुश्किलों से पार पाके, सो फॉलो योर ड्रीम। कुछ लोग जैसे होते हैं ना कि सितारों की सीढ़ी, एक मेरी बड़ी पसंदीदा कविता है, लाइन्स हैं जो कि सितारों की सीढ़ी बना और चढ़, क्यों खौफ खाता है। कुछ लोग वो थे जो वक्त के साये में ढल गए, और कुछ लोग वो थे जो वक्त का साया ही बदल गए। सो आप कोशिश कीजिए एंड गो व्हाट यू लव टू डू। आप अपना पैशन फॉलो कीजिए, मनी विल फॉलो यू, सक्सेस विल फॉलो यू। मुश्किल होगा, लोगों को लगता है जैसे हमें कि आप पढ़ लिख ले लीजिए, अर्न द मनी, मनी इज नॉट द ओनली पैरामीटर।
आप बीइंग अ सक्सेसफुल। मेरे लिए यदि आप बोलें तो मनी इज नॉट अ मोटिवेशन। डेफिनेटली आई नीड मनी फॉर सर्वाइवल, पर मेरे लिए मोटिवेशन नहीं। तो फाइंड यू नो द पैशन। आपको क्या लगता है कि व्हाट यू वांट टू डू? यू वांट टू बी द साइंटिस्ट, यू वांट टू बी द म्यूजिशियन, you want to be the environmentalist, you want to be the naturalist, you want to be doctor, engineer, whatever। और आज सबके लिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि what I do that, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं शहरों के अंदर जंगल लगाता हूँ। बट सो आप ये कीजिए कि आपको जो अच्छा लगता है, फाइंड योर कॉलिंग। और इसका एक सबसे इजी तरीका है कि आपको क्या नहीं करना है। जैसे कई बार होता है, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, पर मुझे ये जरूर पता था क्या नहीं करना है। तो वो मैंने जो जो मेरे पास 10 ऑप्शन थे, तो एक एक करके हटाए, जो 2-3 बचे हुए थे, क्योंकि अब इनमें से क्या किया जा सकता है। एंड दैट इज ऑल्सो फॉलो योर पैशन, फाइट स्टैंड फाइट एंड स्ट्रगल फाइट एंड संघर्ष कीजिए आप इसके लिए। एंड आई एम श्योर कि ये चीजें, और जितने भी लोग दुनिया में सक्सेसफुल हैं, सब लोगों ने यही किया है। हाँ जी। चीजें उनका पैशन है, दे लव देयर जॉब। आपको किसी की नहीं सुननी है कि आपको ये नौकरी करनी है, आपको वो नौकरी करनी है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। आपको ना अपने दिमाग की सुननी है, आपको अपने दिल की सुननी है कि आपको क्या पसंद है। क्योंकि आपके पास 80 साल है, आपके पास 100 साल है, जितने भी साल हैं, आपकी मर्जी है, आप क्या करो। और आपके हाथ में आज समय है, आज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो और अपने पैशन और अपने गोल्स और अपने पास वाले लोगों का ख्याल रखो। यस सर। सो आपने इतनी अच्छी अच्छी किताबें बताई, आपने वैदिक किताबें बताई पेड़ों के बारे में और कुछ, मगर आप स्पेसिफिकली कुछ किताबें बताएंगे जो आप चाहते हैं कि सब लोग पढ़े? मैं बताना चाहूंगा, मेरे एक कोई फेवरेट बुक तो नहीं है, बट आई हैव रेड मोर देन थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, जिसमें स्पिरिचुअलिटी की बुक्स हैं, एनवायरनमेंट की बुक हैं, फिलॉसफी, माइथोलॉजी, जो भी हमारी वैदिक चीजें हैं। बट एक दो किताबों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है मेरी लाइफ में, जिसमें से एक फाउंटेन हेड है। यदि आप देखें, एन रैंड की, काफी टाइम पहले ये हुई थी, एंड स्टिल बहुत लोगों के लिए ये बहुत है। और उसमें एक ऐसे पर्सन की कहानी है जो स्ट्रगल करता है, जो क्या कहते हैं, सोसाइटी उसे वो करना नहीं, व्हाट ही वांट टू डू दैट, पैशन फॉलो करता है, एंड हाउ ही फाइट हिज फॉर द थिंग्स व्हाट ही लव्स एंड ही वांट टू डू। तो उस बुक का मेरी लाइफ में, मीन्स आप बोले कि आई कैन रिलेट विद दैट, आई एम समवेयर, कुछ हिस्सा ऐसा है कि आई वाज लाइक दैट। जब वो मैंने किताब पढ़ी काफी, जब व्हेन आई रेड इट फर्स्ट टाइम, सो मुझे लगा कि नहीं यार, दिस इज समथिंग, दिस इज ऑन मी। एंड काफी सारी, जैसे आई एम रेड द लॉट्स ऑफ बुक आचार्य रजनीश, जिन्हें ओशो बोलते हैं, उनकी किताबों का मेरी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट रहा है। फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति का रहा है, फिर जॉर्ज ऑनवेल का रहा है, जॉर्ज गुरजीफ की काफी सारी किताबें हैं। सो ये चीजें हैं। बट फाउंटेन हेड वन ऑफ द की बुक, एक मुझे बड़ी अच्छी बुक लगी थी। आई कीप रीडिंग, अभी जैसे इसी महीने मैंने 3-4 बुक फिनिश करी हैं, जो जैसे घर से वन तक है, जो दीप नारायण पांडे साहब की बुक है। दिन मैंने इकिगाई दोबारा पढ़ी है। फिर क्या कहते हैं, कुछ इकिगाई बहुत अच्छी किताब है। हाँ जी। हाँ, हाँ बताइए। तो मेरे लिए तो यही है कि फाउंटेन हेड इज वन ऑफ द, एंड इकिगाई इज आल्सो द बुक। वो उसी टाइप की चीज को बता रही है आपकी, कि जो आपका पैशन है, उससे आप कैसे पैशन को फॉलो कर सकते हैं, जो आपके लिए अर्निंग भी ब्रिंग करेगी, एक प्रोफेशनल प्रोफेशन भी क्रिएट करेगी, एंड यू कैन फॉलो योर ड्रीम। सो दीस काइंड ऑफ बुक्स वी हैव टू फॉलो। यस सर। तो लास्टली सर, आप आई होप यू एंजॉयड दिस शो। तो दो लोग बताइए जो आप देखना चाहेंगे इस शो पे, जिनको आप जानते हैं। मैं चाहूंगा कि क्या कहते हैं, वाटर में से, जैसे आप पानी की बात कर रहे थे, तो उसमें आनंद मलिंगावट करके हैं, जो क्या कहते हैं वाटर पे काम करते हैं, लेक रिस्टोरेशन का। और एक नंद किशोर प्रजापति जी हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं, एंड वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनके काम से मैं काफी इंस्पायर हूँ। सो आई विल बी हैप्पी यदि आप उनको बुलाएं, एंड आई विल शेयर देयर कॉन्टेक्ट। एंड कैसे एक रूरल बैकग्राउंड से हैं, और एक बेंगलुरु में और पूरे इंडिया में लेक रिस्टोरेशन के लिए जाने जाते हैं।